One practical I was doing आपका ना to teach the students कि how air and water is important for everybody, either those are the plants or the human beings. So I have kept this semi plant continuously inside the shop. So after 15 days, the position of this, you can see that there is no leaves. It has no leaves on this one. So now the chapters which in my class is now natural resources. This is the formerly it was, and it was in ninth class, and our environment in 10th class. Yesterday 10th class science का पेपर भी हो गया बोर्ड में. But what the inquiries, queries, the practicals, the physical, the mental appearance we are giving to the children or the students. Suppose if I talk about the natural resources of ninth class, which was formerly as chapter number 14. So the breath of life means air, the role of the atmosphere in climate control, the movement of air, winds, rain, air pollution, water, a water liquid, universal solvent, water pollution, mineral riches in the soil, biogeochemical cycles, in that water cycle, the nitrogen cycle, the greenhouse effect, the oxygen cycle, the ozone layer. So these are, in if we just reach to the 10th class, our environment, so in that ecosystem, food web, food chain, abiotic components, air, water, soil, biotic components, plants and animals, ecological paramates, producers, plants, consumer animals, decomposers, microorganisms, and then the primary, secondary, tertiary parasites like herbivores, eat small animals, eat secondary consumers, food from host, waste in our environment, biodegradable, non-biodegradable, manage the garbage we produce, ozone layer depletions, and recycle reuse. Is this important? My mean is theoretical is important or the practical is. I was just giving at last the example to the children's, the dumping area, the trenching area like Gazipur when you enter inside the Delhi. So my request is only the humble request to the government, either that is the state government or the central government. Okay, if will not stop to manufacture the polythenes, the plastics, which are very much harmful for the human beings as well as for the nature. The first thing is, so you should have to be banned or stopped. I can only send my suggestions to you. Then in the second stage, nowadays everywhere, cutting down the forests, which is known as the deforestations. Every people, yeah, every person, yeah, every man, those who are just constructing the house, no trees are there. So my mean is
if we not care the nature, so how the nature will care to us? So I request to all the people of our country, we require 640 trees at least to change the climatical conditions. The February is just about to be finished, and in a day you can feel, you can see how the temperature is increasing. So stopping this, every person has to contribute, or they have the moral responsibility, the moral duties to plant the trees, not the plant, the plants नहीं बोल रहा हूँ, only the trees. तो मेरा मतलब ये है कुल मिलाकर के कि ये चैप्टर्स नेचुरल रिसोर्सेज हट गया है, लेकिन अवर एनवायरनमेंट आज भी 10th में है. तो गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और बार बार मैंने कहा है पिछले वीडियो में भी कि फॉरेस्ट की जो बैरन लैंड्स हैं, उन बैरन लैंड्स को स्कूल्स कॉलेजेस के द्वारा एक्वायर कर दिया है. एडमिशन पीरियड्स में जहाँ पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को इतनी भारी भरकम फीस दे रहे हैं, तो 200 रुपये उनके कम करके उनसे ट्रीज मंगाए जाएं, बच्चों से गड्ढे खुदवाए जाएं. और नहीं भी खुदवाते हैं तो आजकल तो सो मेनी मशीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. और जो लेबर कॉस्ट है वो स्कूल पे करें, क्योंकि इतना पैसा आप कमा रहे हैं. इससे बच्चे की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी नेचर के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति, इकोनॉमी के प्रति, इकोलॉजी के प्रति, मिनरल्स के प्रति, ओर्स के प्रति. तो ये चैप्टर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिल्कुल उस बारूद के ढेर में बैठी हुई है जहां एक्सप्लोज नहीं होगा. जब एवरीबडी यू विल फाइंड आउट, एवरीवेयर यू विल फाइंड आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, हर कोई प्राप्त करेगा, हर किसी के. तो डेफिनेटली क्या होगा, इनहेलिंग में कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जाएगी और साइलेंट किलिंग की वजह ये नेचर के साथ खिलवाड़ होगी. और ये हर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम आपके आंगन में, आपके किचन गार्डन में आपके 2 पेड़ होने चाहिए. अब कई बार लोग कहते हैं नहीं जी हमारे पास तो जगह ही इतनी है. जो आपको मैंने कल भी एक ड्रॉ करके बताया था कि लोग कहते हैं हमारे पास सपोज के लिए 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है. सपोज दिस इज 20 फीट और ये इसकी लेंथ आपका 50 फीट है. तो मैंने क्या बोला था, आप यहाँ देखिए 5 फीट की गैलरी तो आपको बनानी ही पड़ेगी. इस 5 फीट में आपका जो पेडेस्ट्रियन होगा वो आपका 1.5 फीट का आप बना दीजिए. अब यहाँ 3.5 फीट रह गया. तो इसमें आजकल जैसे आम्रपाली आ रहा है, आम की भी पेड़ों की कई वैरायटीज होती हैं, छोटे ट्रीज आते हैं. तो अब आप देखो 50 फीट में, 5 फीट में अगर आपका एक पेड़ लगाएंगे तो 10 ट्रीज आपके छोटे छोटे यहाँ पे आ गए हैं. क्योंकि पीछे आपका ये लेंथ जो आपके 50 फीट है, तो देखो 10 ट्रीज आपके आ गए. पीछे की तरफ ऑलमोस्ट आपको जो है 5 फीट यहाँ भी आपका छोड़ना पड़ेगा. तो ये आपका ये पेड़ यहाँ तक आएगा, तो 3 पेड़ आपका 3 ट्रीज आपका छोटे छोटे आपके यहाँ पे आ गए. इसमें गुआवा ट्री हो सकती है, इसमें लीची का ट्री हो सकता है. ठीक है. आज हार्ट को बचाने के लिए आपका नाम छोटे से आपके प्लांट्स आते हैं, दालचीनी का आप लगा सकते हैं आपका नाम. और
कड़ी पत्ता आपका लगा सकते हैं, आपका कड़ी पत्ता का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। एक नींबू का प्लांट भी आप लगा सकते हैं। आपका नाम देखो जैसे छोटे से लेमन का आपका नाम देखो जैसे। तो बेसिकली अब कई लोग क्या करते हैं, अपनी बाउंड्री को पूरा पैक कर देते हैं। तो आप बताइए एयर कहाँ से आएगी? क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। आपका देखो ये यहाँ आपकी अगर खिड़की है तो यहाँ से आपका नाम देखो ऐसे क्रॉस आपकी एयर आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पीछे की जो बाउंड्री वॉल है कम से कम सभी लोगों को अपना, ठीक है आप चोर उचकों से या जानवरों से बचने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, आपका 6 फीट की अगर आपकी बाउंड्री वॉल है, प्रीमाइसेस आपका जो कंपाउंड है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो अंदर की वॉल है कम से कम यहाँ खिड़कियाँ हो आपकी, प्रॉपर वेंटाइल आपका हो, और जो आपका अब आप देखो यहीं से देखिए आपका जैसे अगर ये आपका 5 फीट था तो 5 × 5 × 250 आपका ये हो गया। इधर से ये हो गया देखो आपका नाम ये 3 आपका कितना 5 फीट आपने ये छोड़ा है, ये यहाँ तक गया तो देखो आपका नाम है इसका मतलब 15 × 5 = 75 75 फीट 5। ये जो 325 स्क्वायर फीट जहाँ आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे वहाँ आपकी ग्रीनरी भी आ गई है, ठीक है। आगे आपका इसको थोड़ा सा अगर आप और स्पेस छोड़ देंगे तो कार पार्किंग भी आपकी यहीं आ जाएंगी अंदर। इंस्टेड ऑफ आपका जस्ट आपका नाम पार्किंग योर कार ऑन द रोड, क्योंकि हर घर में आज बुजुर्ग है, बच्चे उनके फॉरेन में हैं, तो कम से कम आप जो है कम से कम आपकी गाड़ियां अंदर पार्क हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपके पास प्रॉपर देखो आपका ना। और 325 स्क्वायर फीट का मतलब कितना हुआ आपका देखो, इसका मतलब एक रूम 1 रूम जो आपका 50 × 10 का हो तो 150 स्क्वायर फीट ये हो गया। देखिए आपका नाम ऊपर डुप्लेक्स में आपका आ गया। आजकल सिंगल रूम की भी बहुत ज़रूरत है, तो आपका देखो 5/7 का ये आपका किचन भी आपका 35 आपका हो गया आपका नाम देखो 35 स्क्वायर फीट हो गया। और एक टॉयलेट आपका अगर इतना ही अगर आप 35 आपका, ये नहीं कि किराए के लिए है तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए क्योंकि वो किराया दे रहे हैं। जब वो मुंह मांग करके उनसे किराया मांग रहे हैं तो उनको फैसिलिटी भी आप देंगे। आप उनको इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी दीजिए, आप उनका पानी की मोटर भले अलग लगा करके दें जैसे मैंने किया। आप आइए मेरे यहाँ उसको देखिए तो ना दो। अब आपका देखो ये 70 आपका ये हो गया, देखिए आपका नाम तो दिस ये ठीक है 220। अभी देखो 325 स्क्वायर फीट में से 220 स्क्वायर फीट आपका ये हो गया, तो 5 हो गया देखो आपका ये 0 होगा 105। इसका मतलब आप सिंपल सी बात ये करिए, एक 10/10 का रूम आपका और आ सकता है इसमें देखो 10/2 का, फिर भी आपका 5 का बच रहा है आपका ना देखो 10। तो ऊपर की छत आपका देखो ना, ऊपर का लेंटर आपका लेवल देखो कितना आता है आपका ना देखो 10। तो ये आपका डुप्लेक्स भी बन गया, आपकी कॉस्टिंग भी कम आ गई, आपकी ग्रीनरी भी आपका हो गया, और जो 10th में आपने या आपके बच्चों ने जो अवर इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज में आपका पढ़ा था वो भी आपका पूरा फुलफिल हो गया। तो दिस इज नॉट ओनली द मैसेज, दिस इज ऑल्सो द अलार्म to the whole generations of today कि please save the environment, save the atmosphere, save the trees, save the wildlife, save जल जंगल जमीन, and remove or ban completely polythenes, plastic is also included in that, populations and pollutions। आप अपने बच्चों को बेटर अगर आप देते हैं, अभी कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कई लोगों के जॉब छूटे, जो अच्छी सैलरीज में थे वो भी नीचे आ गए, और उसके बाद से एक ट्रेंड आया वर्क फ्रॉम होम, उसमें कंपनीज अपना पूरा पैसा बचा रही हैं। चाय पानी का पैसा कह लीजिए आप, रिफ्रेशमेंट का पैसा कह लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी उनकी बच रही है आपका ना देखो दिस। तो ये सारी चीज़ें तो इन पे पूरा वर्क करिए, फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, कंसीडर करिए, थिंक करिए कि हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ बचाने की सोचोगे। माँ कहना इतना आसान नहीं है,
इस माँ के वर्ड को पहचानिए, रिकॉग्नाइज करिए, आइडेंटिफाई करिए और फ्यूचर बेटर करने के लिए बच्चों को तभी सर्टिफिकेट, बच्चों को तभी डिग्रीज दीजिए जब उनके नाम के 10 पेड़ हिंदुस्तान के हर जगह पे हो, और स्कूल को भी तभी एफिलिएशन दीजिए जब उन्होंने कम से कम बैरन लैंड्स पे जो बंजर भूमि है, उन बंजर भूमि में उन स्कूल्स के नाम की साइन बोर्ड्स लगे हों, और लगभग जिस स्कूल में जितने बच्चे, जितनी स्ट्रेंथ हो, मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 1000 है तो 2000 ट्रीज ग्रो करने चाहिए। टीचर्स की विजिट, प्रिंसिपल की विजिट, मैनेजमेंट बॉडीज की विजिट, चिल्ड्रंस की विजिट, जैसे जैसे पेड़ ग्रो होते हुए ऊपर बढ़ेगा उसमें डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। बच्चों को नेचर के नज़दीक ले जाइए, बच्चों को उनकी इंपॉर्टेंस समझाइए, हाउ वी हैव टू यूटिलाइज, रिसाइकिल कैसे करते हैं, रीयूज कैसे करते हैं, आपने वेस्टेज करनी है नहीं करनी, मैनेजमेंट कैसे होता है। आप खुद ही देखिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। दिस इज मेड बाय हाउ मेनी मैन, हर एज का हो, देखो मैन, मैनेजमेंट, तो देखो ये मैनेज प्लस मैन और प्लस टेक्निकली। तो आज नेचर पे काम करने की बात है। कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वी आर वेरी मच हैप्पी दैट सड़कों की चौड़ाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से क्राउड बढ़ रहा है सड़कों की, लेकिन आपने जो नुकसान किया है, जो ट्रीज आपने कट डाउन किया है, वो आपका ना बीच में जो 5 फीट की आपका ना डिवाइडर बना है, इन डिवाइडर पे भी फ्रूट ट्रीज लगने चाहिए। कुछ सिस्टम तो डेवलप करना पड़ेगा ना। और सड़क के दोनों साइड आपका नाम, किसने बोला कि आप 70 फीट की रोड बनाइए? आप 60 फीट की रोड बनाइए, लेकिन दोनों तरफ आपका पेड़ लगाइए। आने वाली जनरेशन को अच्छी हवा मिल सके, अच्छी सांस मिल सके, ताज़ा पानी, फ्रेश एयर की बात आप करते हैं, फ्रेश पानी की बात करते हैं, नहीं मिलेगा अगर आज आप सोचोगे नहीं, कल आप बचोगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।